Okay, so continuing from where we left, what we left was from electric dipole. Electric dipole. Okay, so from here we have to start. So what is an electric dipole? I'll be very straightforward. An electric dipole means di means two and poles means like opposites kind of, right? Poles apart, very different opposite, right? So two poles. So in electric or electrostatics, we say that an electric dipole is when we connect two, when we have, not connect, but when we have two charges which are opposite, that is one has a positive charge and one has negative charge. Now by definition in electrostatics, an electric dipole is going to have a positive and a negative charge which are equal in magnitude as well. Like the magnitude of these charges I have given plus q and minus q, it can be plus 1 minus 4, it needs to be equal. And by definition, not necessarily, but by definition, they are separated, by a distance of 2a. You'll say why 2a, why not a? It's just that the calculation is easier when we take the value as 2a. We can also take it as d or r, but the calculation will be difficult. But if we take it 2a or 2d or 2r, the calculation will be easier. So now what we can say is that if we have an electric dipole, we can say one has plus q charge, the other charge has minus q magnitude, and then the distance between them is this one, right? So half of it is a and the other of half of it is also a. Now the point where this is half and this is the line joining these two, this is just a line, I'm not connecting it through a wire or something, this is just an imaginary line I'm drawing. Now the point where these two intersect, the line joining these and the perpendicular bisector, we say this is the center of the dipole. And then with this we say this line, which is the line, imaginary line on which these two charges exist, this is known as the axis of dipole. And this line, this perpendicular bisector line, is known as the equatorial line. Okay, so this is known as the equator or the equatorial lines. Now if we see these as two charges, two different charges, let's say plus q and minus q, let's draw the electric field lines. So the charge will, the lines will start from positive and end at negative, so it is going to go like this. One is going to be a straight line, and then like this, like this. I've already drawn the diagram of this thing already, right? This is going to be like this, and this is going to be like this one. Okay, so this is going to be the diagram of the electric field lines. And if we take this as a whole system, then we say that the total charge of this system is 0. And even though the charge of this system is 0, the field of the system is not 0. So for example, if I keep a point over here, it is going to experience a force according to these lines. So according to these lines, if this line is going here, means if it is a positive charge, it is going to experience a force along this line, so it is going to move here, right? So even though the whole charge of the system is 0, then also this system is going to have an electric field. That is why this is a special case which we are studying over here. Okay, now what we do is that we use this as a system, right? So we are going to assume, this is also an assumption, that the distance, this dipole is really very small as compared to the points that we are going to take in consideration. For example, if you want to find the electric field at a point, we are not going to find it somewhere here, or somewhere here. We are going to find it somewhere here. Why? Because we are going to consider this as a system, right? So if we are going to consider it over here, then there will be a force due to this plus charge, and there will be a force due to this minus charge, and we can calculate the vectorial sum of both the forces, and we'll get the exact force which will be in this direction. So it will be it's an easy case. But over here what we are doing is that we are considering this thing where there is a plus q and minus q and the distance is 2a. We are considering to find the dipole, the electric field due to this dipole at this point, which is very far away from this point. So what will happen is that these two will act as one thing. Okay, this will act as one thing which is applying a force on this in any direction, let's say this direction. Okay, so this is going to apply a force in this direction. And how do I know? Because I have calculated it. I'm going to show how I have calculated it, and then you'll also know how we are going to calculate this. Okay, so what we assume is that the distance, let's say this distance is r is very larger as compared to this 2a. This is a very small distance. Now how do we represent a dipole? We represent a dipole like this by an arrow, and we write it as p. P is the naming of electric dipole, and the direction of this arrow is actually in, like, there's a difference between them in physics and chemistry, but in
like in chemistry we take it from positive to negative, but in physics we are going to take it from negative to positive. So this point is going to have negative charge and this point is going to have a positive charge, and there is a distance of 2a between them. So the dipole is shown this way. Okay, so now we are going to calculate the different things which this dipole does to the different points. Okay, so first of all we are going to calculate electric field. One more thing I have to write is that dipole is equal to the charge multiply the distance. Now what is the charge? We are not going to write the total charge because the total charge is 0, right? Dipole has something which is known as the dipole moment. I hope you are already familiar with this dipole moment. Okay, dipole moment is equal to the charge on the magnitude of charge of one of these, like the magnitude without the minus or plus charge multiply the distance between them. So the distance between them, let's say it is L. Here we are having the distance between them equal to 2a, so we are going to write dipole moment of this is equal to 2qa. Okay, if we are having a dipole of, let's say, minus 2q and plus 2q and like this, and the distance between them is 5, so we are going to write the dipole moment as 2 into 5, which is equal to 10 with the respective unit. I hope you can calculate it because charge multiply distance, so coulomb multiply by meter will be the unit. So this is going to be the dipole moment and not 4 times. Okay, so you have to keep this in mind. So electric field due to a dipole, we are again going to calculate this first on the, let's say, axial point. Okay, axial point का क्या मतलब है यहाँ पर, मैं यहाँ पे explain करती हूँ. अगर एक dipole है, let's say this is a positive charge and this is a negative charge, so dipole moment इस side होगा, ऐसे p है, ठीक है, and this the distance between them is, as I already told you, 2a. ओके, तो एक्सियल पॉइंट पे डिस्टेंस का मतलब ये है कि पहले हम इसके एक्सिस बनाएंगे, तो ये इसके एक्सिस है, ठीक है, ये इसके एक्सिस है. इस एक्सिस पे इस तरीके की एक नोशन होनी चाहिए कि एक्सिस पे काफ़ी दूर, लाइक आर जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा है. मैं इसको और लंबा कर देती हूँ, ये जितना मैं दिखा रही हूँ उससे भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर. तो अब ये जो हम डिस्टेंस लेंगे, ये कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे या फिर यहाँ से लेंगे या फिर यहाँ से लेंगे, तो हम लेते हैं सेंटर से, इसीलिए मैंने उसका नेम बताया क्योंकि हम सेंटर से ले रहे हैं. तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है वो आर डिस्टेंस पे है. तो अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस एंड दिस सबसे पहले, ठीक है, हम इंडिविजुअल अगर काउंट करें तो इसकी वजह से इस पर किधर लग रहा है और इसकी वजह से इस पर किधर लग रहा है. तो मान लो ये जो है टेस्ट चार्ज हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं. तो अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट करेगा, तो एक फील्ड इस तरीके की लगेगी, राइट. और फिर उसके बाद अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक रिपल्शन लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है. ये मैंने एरोस बड़े और छोटे इसलिए बनाए हैं बिकॉज ये पास में है, और फोर्स में अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा होता है, और क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट. तो इस तरीके से मैंने इसको इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि पास में है और ये दूर में है, तो ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है. ये हो गया ई माइनस क्यू और ये हो गया ई प्लस क्यू. अब हम इस पे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमें क्या पता पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो यहाँ पे दो फील्ड्स लग रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो यानी ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, ठीक. अब हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे. लेट्स से हम ब्लैक से सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा ग्रीन से सॉल्व कर लेते हैं. तो प्लस क्यू से अगर हम देखें तो के एंड देन Q, दिस इज प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब डिस्टेंस कितना है इसका, प्लस क्यू से डिस्टेंस है दिस आर प्लस ए, सो आर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस फिर हम लिखेंगे के माइनस क्यू अपॉन, क्योंकि मैं यहाँ पे ये एरोज बना रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं वेक्टोरियल ऐड कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैं वेक्टर थोड़ा सा स्किप करूँगी, लास्ट में जाके फिर से वेक्टर लिख दूँगी, तो क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगा तब तक, राइट. तो के माइनस क्यू अपॉन, अब इसका इस माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए, ये जो है ये 2a डिस्टेंस है, तो ये ए और ये ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर. अब उसके बाद मैं यहाँ पे से के क्यू कॉमन ले लेती हूँ, तो के क्यू कॉमन लेंगे 1 बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे से के क्यू कॉमन लेंगे तो माइनस 1 बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर, राइट. अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो के क्यू आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए होल स्क्वायर, एलसीएम लिया, इधर ये लेके गए तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है. यहाँ पे जाएगा ये, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आर से आर कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, और ये आएगा के क्यू माइनस 4ar अपॉन, अब ये देखो ये आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए और ये होल स्क्वायर दोनों पे है, तो हम होल स्क्वायर दोनों पे लिख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल स्क्वायर,
ओके, सो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस एंड वी आर गोइंग टू राइट इट एज आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर हम इसको लिखेंगे के क्यू माइनस 4ar अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे थे, हम यहाँ पे बोल रहे थे कि r जो है वो 2a से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब कि r a से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर r a से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब r स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 2 से बड़ा होता है तो 9 4 से और ज़्यादा बड़ा होता है। लाइक जितना डिफरेंस 2 और 3 में है उससे ज़्यादा डिफरेंस 9 और 4 में है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर ये बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये ऐसा है जैसे कि हम यहाँ पे 100 में से 0.01 माइनस कर रहे हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस r is greater than 2a, so r square is greater than a square, so we can write it as kq minus 4qr by ar, this is ar by r square whole square। ठीक है, अब ये r square उसका तो r की पावर 4 हुआ, यहाँ पे से r इसको कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा r क्यूब बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं kq by 4 भी है यहाँ पे 4a और ये माइनस का है, kq माइनस 4a अपॉन r क्यूब। ओके, हम इसको लिख सकते हैं के क्यू माइनस 4a अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब था, आर क्यूब, राइट। अब देखो डायग्राम मेरे पीछे चली गई, मैं फिर से बना दे रही हूँ। ये मेरा प्लस है और ये माइनस है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और इनके बीच का डिस्टेंस 2 है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि डाइपोल का डायरेक्शन किधर है। डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? डाइपोल का डायरेक्शन होगा फ्रॉम माइनस टू प्लस, ये डायरेक्शन है डाइपोल का। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो लग रही है वो ये इसकी वजह से लग रही है और ये इसकी वजह से लग रही है, राइट। ये इसकी वजह से और ये इसकी वजह से, ठीक है। और डाइपोल का डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस है। अब अगर हम ये देखें तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस के क्यू 4a अपॉन आर क्यूब। तो ये जो माइनस यहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो माइनस है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस का जो मतलब माइनस चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इसका टोटल डायरेक्शन इसका प्लस इसका का डायरेक्शन इस तरफ ही होगा कहीं पर, और ये डायरेक्शन पी की तरफ है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं के क्यू 4a बाई आर क्यू पी वेक्टर पी कैप यानी कि पी के डायरेक्शन में, ये पी वेक्टर है तो पी के डायरेक्शन में। तो इसका यहाँ पे ये जो माइनस है मैंने ये क्यों हटा दिया, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो कि यहाँ पे होती तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से लगता और एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगता, ठीक। और इन आई एम सॉरी, ये प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है बहुत बड़ा, और यहाँ पे एक छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ कहीं पे लगेगा और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ पी है, राइट। तो ये जो माइनस चार्ज है ये बस इतना दिखा रहा था कि ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनस क्यू की तरफ है, मतलब माइनस क्यू की ज़्यादा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो हम उसको वहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बेटर ये होता है कि हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है इसको इधर ही रखें, ताकि हमारे को पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बेसिकली ये माइनस क्यू यही शो करने की कोशिश कर रहा है कि माइनस क्यू का इस पे जो है इफेक्ट वो ज़्यादा पड़ रहा है दैन प्लस क्यू का। तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब हमने ये लिखा था कि डाइपोल मोमेंट, देखो हम यहाँ पे फील्ड ऑफ डाइपोल निकाल रहे हैं तो हम जो वैल्यूज़ है वो डाइपोल के ही रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि अगर एक छोटा सा डाइपोल उसके बारे में हमें दिया हुआ है कि उसका डाइपोल मोमेंट इतना है तो इस पॉइंट पे उस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। तो डाइपोल मोमेंट हमने क्या लिखा था? डाइपोल मोमेंट हमने लिखा था 2qa, राइट। तो 2qa हम इसमें से निकाल लेते हैं, kq2a और एक 2 बाहर रह जाएगा अपॉन आर क्यूब, और इस 2qa को हम p वेक्टर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब p कैप की तरफ इसका डायरेक्शन है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पे 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब p कैप है। अब हम इसको याद कैसे कर सकते हैं ना, मेरे पास एक बहुत छोटा सा ट्रिक है इसको याद करने का। वो ये है कि एक्सियल इस तरीके से लिखते हैं और ये ए है, और ये ए एक्चुअली में एक टोपी जैसा दिखता है, लाइक टोपी, ओके, लाइक अ कैप, लाइक अ टोपी। और टोपी को हम एक्चुअली में 2p बोल सकते हैं, ठीक है। तो
ये हो जाएगा 2p/r³। ये तो डायरेक्शन है, तो ये अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो ये नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सियल में 2p यानी 2p/r³। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम इक्वेटोरियल निकालेंगे तो वो 2p नहीं आएगा, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2p किस में था, एक्सियल में था या इक्वेटोरियल में था। तो ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि इक्वेटर वाली लाइन पे क्या होगा। तो अगर हम एक चार्ज बनाते हैं +q और हम एक चार्ज बनाते हैं -q और हम इनको डिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा a। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर, और इस पॉइंट का नाम देते हैं p, और ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से वो है r। तो अब हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। ये एक्चुअली में इतना छोटा है नहीं, है ना, ये बहुत छोटा यहाँ पर है और वो पॉइंट वहाँ पर है और हम ऐसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ डायग्राम बड़ा, ताकि हमें इजीली कैलकुलेशन आ सके, राइट। तो अगर हमें यहाँ पर निकालनी होगी तो इसकी वजह, ये जो डिस्टेंस है सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये डिस्टेंस है r² + a² का रूट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज ऑल्सो √r² + a²। ओके, अब इसकी वजह से इस पर जो फील्ड लगेगी वो रिपल्सिव लगेगी इधर, और इसकी वजह से जो इस पे फील्ड लगेगी वो अट्रैक्टिव लगेगी इस तरफ, ठीक। इसको मैं लिख देती हूँ E+q और इसको मैं लिख देती हूँ E-q, ठीक है। हम वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हर बार हमें अभी सिंबल लिखना होगा। मैं लास्ट में वेक्टर ऐड कर दूंगी, अभी हम अपनी इंट्यूशन से चलेंगे कि डायरेक्शन किधर है। अभी देखो, P वेक्टर इस तरफ है, हमें ये याद रखना है। P वेक्टर इज फ्रॉम -q to +q, ये हमें याद रखना है। अब अगर हम इसका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो देयर इज 2 वेज टू फाइंड द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो हम ये करें कि E+q हो, लाइक वेक्टर एडिशन से √E+q² + E-q² + 2E+q - q cos थीटा बिटवीन देम। तो ये थीटा निकालना होगा हमें। तो ये थीटा हम ऐसे निकाल सकते हैं कि लाइक एक पैरेलल लाइन इससे बनाएं एंड एक थीटा निकालें और फिर cos 2 थीटा = 2 cos पर थीटा -1 से निकालें। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी है, दे कैन इजीली फाइंड इट। एंड अगर हम एक बेटर वे इसको सॉल्व करने का निकालें तो वो ये है कि हम इसका कॉम्पोनेंट करें। कॉम्पोनेंट से ही ईजिली हो जाएगा। कॉम्पोनेंट उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये है, लाइक इसके पैरेलल में कॉम्पोनेंट करूँगी, तो एक कॉम्पोनेंट मैं यहाँ पे करूँगी तो दूसरा कॉम्पोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से, राइट। ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना, उनका कंपोनेंट, तो एक जो है वो बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा और एक इस तरीके से आएगा, और उसी तरीके से इसका भी एक इधर आएगा एक इधर आएगा। अब कंपोनेंट करेंगे तो ये थीटा हमें फाइंड करना होगा। तो ये थीटा फाइंड करना बहुत इजी है, बिकॉज ये देखो, ये पैरेलल लाइन इससे है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाते हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा है। तो इस इधर से हम निकाल सकते हैं cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन √r² + a²। अब हम निकालते हैं E+q क्या है। E+q है दिस q अपॉन दिस डिस्टेंस होल स्क्वायर, सो r² + a² रूट का होल स्क्वायर, विच इज एक्चुअली = kq/r² + a², ठीक है। और E-q क्या है, मैं इसमें -q नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट सॉल्विंग इट वेक्टोरियली। मैं इसको इंट्यूशन से सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं इसको अगर माइनस में लेती तो मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये लेती और फिर मैं बोलती कि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये है। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे -q नहीं लेना है, ठीक है। तो kq/r² + a² रूट का होल स्क्वायर, विच इज = kq/r² + a², ठीक। और ये एक्चुअली में दोनों सेम आ रहे हैं, ओके। अब हम इनका वेक्टर सम जो करेंगे तो ये देखो, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये E+q है, मान लो, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम इन दोनों को E लिख सकते हैं ना। ये E अगर है तो ये E cos थीटा हो जाएगा और ये E sin थीटा हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर ये E है तो ये E cos थीटा हो जाएगा और ये E sin थीटा हो जाएगा। तो E sin थीटा वाले तो कैंसिल हो गए ना, ऊपर और नीचे अगर लगेगा फील्ड तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 2E cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, E फाइनल, E नेट जो है वो इक्वल टू क्या है, इट इज़ = 2E cos थीटा। और अब हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे।
राइट। 2 ई पुट करेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ये है ये अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं इसको रूट को ना 1/2 लिख रही हूँ, पावर 1/2 लिख रही हूँ ताकि हमारे को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2k/q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 1/2 इज 3/2, राइट। तो अभी हमने ये लिखा। अब मुझे पता है कि p क्या होता था, p होता था 2qa वेक्टर, ये a वेक्टर एक्चुअली में माइनस से प्लस है ना, 2a है ये एक्चुअली में 2a, राइट। तो इसको एक्चुअली 2qa लिख सकते हैं ना, p = 2qa। तो हमने ये 2qa इसमें से उठा लिया, तो हमने इसको क्या लिखा p/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब हमें पहले से क्या पता है कि आर स्क्वायर इज़ वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, वो मैंने पहले ही बताया था लास्ट वाले में कि आर इज़ ग्रेटर देन 2a, तो उससे ये आएगा। तो हमें ये लिखना होगा ब्रैकेट में यहाँ पे, सिंस दिस दैट इज़ वाई हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे kp/r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, हम इसको लिखेंगे kp/r³। तो ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू kp/r³। अब हम इसको वेक्टर में लिखेंगे, मतलब हम इसको अब डायरेक्शन देंगे। तो डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन देंगे सबसे पहले तो p वेक्टर बना देंगे इसका, ठीक। अब इसका जब हमने p वेक्टर बना दिया तो p वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ, लेकिन फील्ड किस तरफ लग रही है, इस तरफ, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे जो डायरेक्शन देंगे वो देंगे -p। तो हम इसको लिख देंगे -kp/r³ p। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको अब ये याद करने का मैंने तुम्हें बताया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2p/r³, क्योंकि वो a है तो a मतलब टोपी, तो टोपी मतलब 2p/r³, और एक्सियल पॉइंट पे, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp/r³। डायरेक्शन इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ये कैसे याद रहेगा। तो ये बहुत ईजी है एक्चुअली में ना। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में यहाँ पे फील्ड अगर देखें तो यहाँ पे फील्ड किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है। और ये -q था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये +q था और ये -q था। तो -q से +q डायरेक्शन ऑफ डायपोल तो ये है, लेकिन फील्ड इस तरफ लग रही थी। और अगर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे ऐसे देखो ये निकल रही है इस तरफ, तो इसका मतलब ये किस तरफ लग रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ p लग रही है ना। तो ये 2p/r एक्सियल पॉइंट है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल, ये हो जाएगा 2p/r³ इन द डायरेक्शन ऑफ p, यानी कि 2p/r³ p। और यहाँ पे भी वही सेम होगा, इस तरीके से जा रहा है तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ p ही है ना। लेकिन यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऑपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे kp/r³ और -p वेक्टर। तो हम माइनस को बाहर लेके जाएंगे तो -kp/r³ p वेक्टर, फाइन। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक। अब डाइपोल की सिग्निफिकेंस क्या है, तो डाइपोल की सिग्निफिकेंस केमिस्ट्री में ही ज़्यादा होती है। केमिस्ट्री में जब हम डाइपोल निकालते हैं तो जो चार्जेस आ रही होती हैं वहाँ पर, उनमें ये काम आता है। तो ये NCERT है, यू कैन रीड इट, इट्स नॉट वेरी important. Now the next part we are going to see is dipole in uniform external field. Dipole in uniform external field, ठीक। अब देखो हमने पहले क्या देखा कि डाइपोल की वजह से किसी फार अवे पॉइंट पे क्या फील्ड लग रही है। अब हम देख रहे हैं कि डाइपोल को फील्ड में रख दे रहे हैं तो डाइपोल का क्या बना, राइट। तो मान लो एक फील्ड दौड़ रही है इस तरीके से। अब ये यूनिफॉर्म है इसलिए मैं इस तरीके से यूनिफॉर्म बना रही हूँ, नॉन यूनिफॉर्म का अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और एक नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। इसको मैं एक एंगल पे रख रही हूँ। मैं इसको कैसे भी रख सकती थी, मैं इसको ऐसे भी रख सकती थी, बट हमें फाइंड करना है तो हम इसको एक एंगल पे रख देते हैं, ठीक है। तो इस एंगल पे रखेंगे, ये उसका सेंटर हो जाएगा। सेंटर से मैं एक ऐसी लाइन बना देती हूँ,
वो एक्चुअली में ऐसे बननी चाहिए थी, बट मैं ऐसे इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं इसका थीटा निकाल सकूँ कि ये पहले ऐसे होता ना, इस तरीके से होता तो ऐसी एक इक्वेटोरियल लाइन बनती, लेकिन वो अभी इक्वेटर से कितनी घूमी हुई है, तो अभी इक्वेटर से वो इस तरीके से थीटा एंगल पे घूमी हुई है, तो हम इसको थीटा बोल रहे हैं। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, लेकिन देखो इस तरीके से रखा होता और फिर वो ऐसे घूम रहा है, तो हम इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है। हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। ओके, नोट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पर, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होता है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नेगेटिव चार्ज पे इसका डायरेक्शन ऑपोजिट लगेगा, फोर्स ऑपोजिट लगेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो उधर ही होती है। तो इस पे एक फोर्स लगेगी इस तरफ, फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई। इस पे एक फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स की वैल्यू होगी -Q इंटू ई। माइनस आया इसलिए मैंने ऑपोजिट बनाया, ठीक। तो टोटल फोर्स इस डाइपोल पे अगर देखें, डाइपोल अगर देखें ना, तो एक्चुअली में एक सिस्टम ले लो, ऐसे एक बटन है, दो पॉजिटिव चार्ज बने हुए हैं, तो मैं पूछ रही हूँ इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो एक मास है, मान लो ऐसे करके एक मास है जिसमें डाइपोल था अंदर में, उस डाइपोल पे इस तरफ Q ही और इस थोड़ा सा नीचे में -Q ही लग रहा है, तो एक्चुअली में टोटल फोर्स कितना बोलोगे, टोटल फोर्स सिग्मा एफ, यानी टोटल फोर्स जो होगा वो होगा QE माइनस QE इक्वल टू 0। इस पर टोटल फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ये धक्का आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अब बोलोगे तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि इस पर फोर्स ऊपर नीचे लग रहा है ना, ठीक है। ऊपर नीचे लगने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ, देखो ये ना अगर मैं बहुत ढंग से लगाऊं तो ये ना ऊपर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रही है, क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। वाई इज इट रोटेटिंग। ये एक ऑब्जेक्ट थी, मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। ये फोर्स लगा रही हूँ मैं, इस पे इस तरफ लग रहा है, इस पे इस तरफ लग रहा है, तो देखो ये ना ऊपर जा रहा है, ये ना नीचे जा रहा है, ये एक्चुअली में घूम रहा है, ये एक्चुअली में इस तरीके से घूमेगा। तो ये घूमेगा, इसका मतलब क्या है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। और रोटेशनल मोशन हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है कि रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगता है हम उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इज द फोर्स विच हेल्प्स इन रोटेटिंग अ बॉडी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, आई होप यू रिमेंबर, टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू आर इंटू एफ। लाइक अगर हम वेक्टोरियली लिखें तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि क्रॉस का मतलब होता है आर एफ साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट मीन्स आर एफ कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे आर एफ साइन थीटा हो रहा है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे कि इस पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है, हम इस पे टॉर्क की फॉर्मूला लिखेंगे। तो इस पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं बता दूं, आर इंटू एफ है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो हम इसको लिखेंगे QE। और इस पे R जो है वो A है, तो A लिखेंगे, और फिर साइन थीटा, ओके। प्लस अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होती है ना वो ये या ये, यानी कि राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अगर हम देखें इस पे कितना लग रहा है, तो इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है ना, R क्रॉस F है, ठीक है। R क्रॉस F का मतलब होता है R से F की तरफ जाना है और डायरेक्शन देखना है। तो R ये है, R से F की तरफ गए, ये R है, ये ऐसे करके R आगे बढ़ा दो, R क्रॉस F तो इनवर्ड्स है, इसमें R क्रॉस F देखो तो R इस तरीके से है और फिर F, ठीक है, ये भी इनवर्ड्स है। हाथ ऊपर करके अच्छे से करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट, ओके। मैंने इसलिए R क्रॉस F लिखा, F क्रॉस R नहीं लिखेंगे, टाउ इक्वल टू R क्रॉस F ही होता है ये, तभी उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो या फिर ऐसे समझो ना, एक नॉर्मल रोटेटिंग बॉडी है, ऐसे रोटेटिंग बॉडी है, तो इस पे अगर टॉर्क इस तरफ लग रहा है और इस पे टॉर्क इस तरफ लग रहा है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन है ना, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन रोटेट कर रहा है। अगर एक टॉर्क इधर लगता है और एक टॉर्क इधर लगता है और ये एक डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है, तो मतलब सेम ही होना चाहिए ना। ऑपोजिट कैसे हो सकता है, ऑपोजिट होता तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज टॉर्क के सेम डायरेक्शन होते हैं। फोर्स के ऑपोजिट है ना, ये फोर्स इधर लग रही है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इज ऑपोजिट
आई एम अग्रीइंग, बट टॉर्क इज इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज ये इसको इस तरफ खींच रहा है, मतलब ऐसे घुमा रहा है, और ये इसको ऐसे घुमा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम है तो हम यहाँ पे अब माइनस क्यू ई नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है, क्यू ई लिखेंगे, ए लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो जो टोटल टॉर्क इस पे लग रहा है वो हो जाएगा 2QEA साइन थीटा। और हमें पता है कि 2QA क्या होता है, P होता है ना, तो हम इसको लिखेंगे PE साइन थीटा। और जब भी साइन थीटा आए तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, तो इसका मतलब या तो ये P क्रॉस E है या फिर ये E क्रॉस P है। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, तो देखो P का डायरेक्शन बनाओ, P का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ऐसे बनेगा, और E का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब ये देखो कि जो टॉर्क हमारा लग रहा था वो ऐसे करके लग रहा था, ऐसे घुमा रहा था ना, ऐसे घुमा रहा है मतलब कि राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, ऐसे इन्वर्ट्स जाएगा, इन्वर्ट्स जाएगा, तो इसका मतलब कि इसका भी आंसर इन्वर्ट्स ही आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि P क्रॉस E से इन्वर्ट्स आ रहा है कि E क्रॉस P से इन्वर्ट्स आ रहा है। तो P क्रॉस E इन्वर्ट्स आ रहा है, ग्रेट। E क्रॉस P यानी कि E क्रॉस P आउटवर्ड्स आ रहा है, मतलब रॉन्ग। तो दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इसको हम फिर लिख सकते हैं PE साइन थीटा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद हमें पता है कि जो चीज़ें आती हैं उसे हम कहते हैं गॉस लॉ, एंड देन वी हैव fields due to different types of objects. Okay, so now I'm going to just skip over here and make the list of all the things we are going to calculate the electric field and due to different types of objects by using Gauss law and without using the Gauss law as well. So we are going to continue with what is called the Gauss law. Okay, सबसे पहले गॉस लॉ क्या चीज़ है। गॉस लॉ इज एन अमेजिंग way of finding electric field due to various kinds of shapes of charges। क्योंकि गॉस लॉ अगर नहीं होता ना तो यू वुड हैव बीन लाइक मर जाते निकालते निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन एट अ वेरियस लेवल्स करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बहुत सारी तगड़ी वाली करनी पड़ती है, एंड उसके बाद तो फिर छोड़ ही दो। तो बेहतर ये है कि हम एक ऐसे साइंस के बारे में पढ़ें जो कि एक्चुअली इंट्यूशन है। लाइक इंट्यूशन का मतलब ये है कि गॉस ने इस फॉर्मूले को निकालने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया था वो ये था कि बस अच्छा इससे ऐसे आ रहा है, इससे ऐसे आ रहा है, इससे ऐसे आ रहा है, तो इससे ऐसे आएगा, एंड दैट फार्मूला वर्क फॉर एवरीथिंग। तो इसका मतलब ये एक इंट्यूटिव फार्मूला था जो गॉस ने निकाला था। इसका डेरिवेशन जो हम करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू प्लस चार्ज के साथ, यानी एक पॉइंट चार्ज से करते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन विदाउट अ पॉइंट चार्ज भी है, लाइक एक जनरल डेरिवेशन है, बट इट्स नॉट कवर्ड इन आवर सिलेबस, नॉर डू वी हैव टू स्टडी, नॉर डू वी हैव द अर्ज टू स्टडी राइट नाउ। पहले हम गॉस लॉ समझ लें क्या होता है, राइट। तो गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि लाइक अगर मैं एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ूँ, सो द लॉ इम्प्लाइज दैट, ये जो एनसीईआरटी की जो लाइन है और ये जो लॉ है ये इसका सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लिख लें और फिर इसके बाद इसकी हम डेरिवेशन आई मीन डेफिनेशन लिख लें तो इट इज़ वेरी इजी। फॉर्मूला ये है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दिखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना, बट इट इज़ नॉट एट ऑल हार्ड। ये आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी मेहनतों को कम कर देगा, ये बहुत बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन कम कर देगा। बोलोगे ये कौन सा अजीब तरीके का इंटीग्रेशन है जो यहाँ पे आ रहा है जो हमारी इंटीग्रेशन कम करेगा। अरे भाई ये अजीब तरीके की इंटीग्रेशन जो है ना ये तो चुटकी में ये यूँ ऐसे सॉल्व होती है। ये जो है ना ये सर्कल, इसका मतलब होता है क्लोज्ड का मतलब ये होता है बंद, बस इसका और कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि the
क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, अब देखो ई डॉट डी एक्चुअली में ई ए नहीं लग रहा, ई ए हमारा फ्लक्स था, ये हमने पढ़ा था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया, जिसको हम एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो मैंने इतनी बड़ी लाइन लिखी है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ थ्रू एंड एरिया, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं। तो द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एंड एरिया, जो कि है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, अब ये जो क्लोज्ड सरफेस है, अगर हमें ये वाला डेफिनेशन लिखते हो ना, तो क्लोज्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, इसलिए मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज्ड का मतलब ये है कि मैंने इंटीग्रल क्लोज में किया, मतलब जो सरफेस था वो मैंने क्लोज लिया था। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रही हूँ, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इन ऐड कर लीजिए, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी क्लोज्ड सरफेस में, मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर जो ये शार्पनर्स हैं, ये शार्पनिंग्स हैं, ये हैं हमारी चार्ज, ठीक है, इसको बोलेंगे क्यू इन। अब मान लो मेरे पास कुछ शार्पनिंग बाहर में है, ठीक है, बहुत सारी शार्पनिंग है, एक जैसा चार्ज लेते हैं, ठीक है, ये भी एक जैसा चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, एक चार्ज वहाँ पर है, और ये मैंने इसको अंदर बंद कर दिया इस सब्सटेंस के अंदर। तो हमारी शेप क्या है, हमारी एक शेप है, इसको हम, इस शेप को हम बोलेंगे हेमीस्फेयर, ठीक। इस शेप के बाहर भी चार्ज है, ओके, ये अंदर में चार्ज है, बाहर में भी चार्ज है। व्हाट वी से इज दैट इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये जो है चार्ज, इसकी फील्ड लाइन ऐसे जा रही होंगी, इसकी फील्ड लाइन ऐसे जा रही होंगी, उस अंदर की चार्ज की फील्ड लाइन ऐसे बाहर आ रही होंगी, अगर दो सारे पॉजिटिव हैं तो, ठीक है, नेगेटिव नहीं मान रही हूँ मैं, अभी पॉजिटिव से एग्जांपल दे रही हूँ, नेगेटिव आप अपने खुद से इंट्यूशन लगाइएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे बाहर जा रही है, इसकी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, उस अंदर की फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, सरफेस के अंदर से ऐसे होती हुई निकल जाएगी, इसकी फील्ड लाइन जाएगी, सरफेस होते हुए निकल जाएगी। ये जो सरफेस है ना, ये इमेजिनरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये डब्बा बंद है तो इसका मतलब इस डब्बे के अंदर यहाँ पे एक डब्बा होना चाहिए, ये डब्बा नहीं है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस होता है, वो मैं मानती, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस मैंने लिया है, उसकी वजह से ऐसे फील आ रही है, इसकी वजह से फील आ रही है, उस अंदर वाले चार्ज की वजह से फील आ रही है। तो जो टोटल फील्ड है, टोटल फील्ड, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल टू है 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सिस्टम। मतलब फ्लक्स इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से निकालेंगे, लेकिन जो सिस्टम के अंदर चार्ज है उसी की वजह से वो फ्लक्स निकलेगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, इससे जो लाइंस है ना वो इसके अंदर से होती हुई निकल जाएंगी, मतलब बाहर निकल जाएंगी, तो इसका कोई फ्लक्स में मतलब नहीं है, इसका भी ऐसे आएगी और उसमें से पूरे निकल के वापस चली जाएगी, लेकिन जो अंदर वाली है ना उसकी लाइंस एक्चुअली में निकल रही हैं पर वापस नहीं जा रही हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल काउंट कर रहे हैं, तो हम टोटल का काउंट कर रहे हैं, तो वो टोटल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ अंदर के चार्ज के बराबर है, ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है। अब इससे हम कैसे फील्ड निकालेंगे, हम ये जब फील्ड निकालेंगे ना तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द लॉ इम्प्लाइज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो इफ नो चार्ज इज इनक्लोज। तो मैंने क्या बोला कि 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सिस्टम होगा। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर सिस्टम में कोई चार्ज नहीं है, मतलब अगर सिस्टम में जीरो चार्ज है तो 1/एप्सिलॉन ऑफ जीरो होता है जीरो, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होने वाला है जीरो। क्या इसमें कोई भी ऐसी बात थी जो नहीं समझ में आई? मान लो मैं यहाँ पे ऐसा ही रख दूँ लेकिन वो खाली हो, तो उसके अंदर कोई क्यू इन नहीं है, तो जब क्यू इन नहीं है तो 1/एप्सिलॉन ऑफ क्यू इन क्या होगा, जीरो। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू
0 if the total charge inside the closed surface is 0. सिंपल. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. तो the significance of Gauss law is that Gauss law is true for any closed surface no matter what is the shape. मैंने बोला ना ये कोई भी शेप का हो सकता है. मैंने एक हेमिस्फेयर लिया है, आप एक ये शेप ले लो, कुछ भी चलेगा. Next is the term on the right side of the Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface. अंदर होनी चाहिए surface के, बाहर नहीं होनी चाहिए. The charges may be located anywhere inside, मतलब अंदर कहीं पे भी हो सकती है. ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे कहीं पे भी हो सकती है. तीसरी बात, in the situation when the surface is chosen that there are some charges inside and some charges outside, the electric field जिसकी फ्लक्स अपीयर कर रही है, जिसकी फ्लक्स यहाँ पे आ रही है, ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये इस पूरी चीज़ को हम फ्लक्स बोलते हैं. फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि लेफ्ट साइड पे ये जो फ्लक्स है, अगर चार्जेस अंदर और बाहर दोनों हैं तो उन सब की वजह से इन द सिचुएशन व्हेन सरफेस इज चूजन सच दैट देयर इज सम चार्जेस इनसाइड एंड सम चार्जेस आउटसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी फ्लक्स लेफ्ट साइड में है, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस अंदर एंड बाहर, ऑल द चार्जेस. द टर्म ऑन द राइट साइड हाउएवर, जो राइट साइड में टर्म है वो इनसाइड की ही है, वो सरफेस के अंदर ही होनी चाहिए. तो सरफेस क्लोज होना चाहिए. ये नहीं कि एक सरफेस ऐसे सीधा सा पेपर ले लिया, बोले इसके अंदर निकालो. अरे वो सरफेस क्लोज नहीं है ना, हम निकाल ही रहे हैं क्लोज सरफेस में. उस पेपर को रोल करके ऐसे बनाओ कि वो चारों तरफ से बंद हो जाए. अगर वो चारों तरफ से बंद करोगे, मैंने एक सिलेंडर बनाया तो चारों तरफ से नहीं बंद हुआ, इधर इधर से खुला हुआ है, तो दो पेपर लो जिनको इधर से भी बंद करो, तब जाके वो पूरी तरीके से बंद होगा. एक खुले बाल्टी में से आप नहीं निकाल सकते फ्लक्स, लेकिन एक बाल्टी को दूसरे बाल्टी से ऐसे जोड़ के इस तरीके से, एक बाल्टी है दोनों जोड़ दिए, अब आप फ्लक्स निकाल सकते हो. खुली चीज़ से फ्लक्स नहीं निकाल सकते. ठीक. चौथी बात ये है कि द सरफेस वी चूज इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस. इस सरफेस को, यानी कि ये मिला के पूरा ये जो सरफेस है, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं. गॉसियन सरफेस आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा चूज़ करें, सबसे पहले तो ये सरफेस जो है ना, ये चार्ज से पास नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये रास्ते में मैंने ये इसको खोला और ये जो चार्ज है ये इस तरीके से इसके रास्ते में पास हो रही है. ठीक है, ऐसे ये चार्ज इसके अंदर भी है बाहर भी है, पता नहीं कितना अंदर है पता नहीं कितना बाहर है. ऐसा सरफेस नहीं चूज करना है स्ट्रिक्टली. थोड़ा सा इधर कर दो ना इसको, ये बाहर होना चाहिए, बाहर या अंदर होना चाहिए. ऐसे थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर नहीं होना चाहिए. इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन. उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आपने उसको बीच में फंसा दिया था, वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है मालूम नहीं. क्योंकि आपने देखा है कि एक चार्ज जब होती है ना, तो उसके अंदर से फील्ड लाइन्स ऐसे जब निकल रही होती है ना, एक्चुअली वो इनफाइनाइट लाइन्स ऐसे ऐसे निकल रही होती है, ऐसे 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 इनफाइनाइट लाइन्स निकल रही होती है, तब जाके वो फैलती है. तो ये जो इनफाइनाइट लाइन्स है, मैं इस बोलूँगी कि इस पॉइंट पे निकालो, तो वो इनफाइनाइट लाइन्स का मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी, वी डोंट नो दैट. ओके. फिफ्थ पॉइंट इज दैट गॉसियन सरफेस हम ऐसा चूज करें कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो. तो अभी आप देखोगे कि कैलकुलेशन कैसे गॉसियन सरफेस में आसान करते हैं. कोई भी सरफेस ऐसा स्मूथ सा ऐसे 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 लेने का फ़ायदा नहीं है. हम गॉसियन सरफेस अच्छा सा लेंगे जो सिमेट्री जिसमें बहुत ज़्यादा हो और जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो. और फाइनल पॉइंट ये है कि गॉस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस, जो कि कूलम्स लॉ है. तो मतलब कि गॉस लॉ जो है वो कूलम्स लॉ को फॉलो करता है. तो अगर गॉस लॉ वायलेट होगा तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी वायलेट होगा. इसका मतलब गॉस लॉ गलत हो जाएगा. लेकिन गॉस लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि गॉस लॉ सही है. ये एक इंटुइटिव है, मतलब इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, इसको बस ऐसे ही फॉर्मूले के तौर पे निकाला गया था. लेकिन ये वर्क कर रहा है. तो अगर कहीं पे नहीं वर्क करता है तो प्लीज़ मुझे बताइए. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट डिस्कवरी. मैं आपको कॉपीराइट दे दूँगी. ओके. सो ये तो हो गई गॉस लॉ की बहुत मज़ेदार सी स्टार्टिंग, लाइक इंट्रोडक्शन. अब मैं ये सब चीज़ें ज़रा फेंकूँ बाहर. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से अगर मैं एक पॉइंट P पर फील्ड बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आपको पहले से ही पता है कि इट इज़ गोइंग टू बी KQ/R². अगर डिस्टेंस R है, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R². ये आपको पहले से पता थी कि नहीं पता थी? पता थी ना. अब आप देखना कि मैं इसको गॉस लॉ से कैसे निकालती हूँ. तो सबसे
सबसे पहले मैं बता दूं, ये पॉइंट P जो है ये सिर्फ एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैं अगर कभी रखूंगी चार्ज तो मैं निकालना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे अभी चार्ज है, ठीक है। तो ये मत कहना कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्यों लगा दिया। यहाँ पे गॉसियन सरफेस इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे हमें निकालना है ना कि इस पॉइंट पे कोई चार्ज इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेजेंट है, ठीक है। अभी कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट पे मेरे को अगर निकालना है तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसा बताओ, एक ऐसा सरफेस बताओ जिसके तरफ इस क्यू से फील्ड लाइन सिमेट्रिक आती हूँ, मतलब एक जैसी आती हूँ। अब मैं मान लो एक क्यूब बना देती हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट P को क्यूब का ये पॉइंट बना देती हूँ और चार्ज को सेंटर ऑफ द क्यूब बनाती हूँ, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तो सेम होंगे, बट बाकी पॉइंट्स पे तो एसिमेट्रिक है ना। तो हर पॉइंट पे सिमेट्रिकल नहीं है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, हर पॉइंट पे सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसका मतलब इस क्यूब को एक्चुअली में सर्कल बना दो, स्फेयर बना दो, तो क्या हो जाएगा ना, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। आवर गॉसियन सरफेस इज हियर इज गोइंग टू बी अ स्फेरिकल सरफेस, दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस। तो हम ये लिखेंगे कि लेट अस assume a Gaussian surface which is spherical in shape and which passes through the point P and it is at a distance r from our given point charge q, ठीक। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ये एक स्फीयर है, एक स्फीयर मानो, इसके अंदर एक पॉइंट क्यू है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, कहीं पे भी उस स्फीयर पे हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे माना है। कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि मतलब पी तो आर डिस्टेंस पे ही बस रखना है ना, तो ये एक रूल है। तो सिमेट्री बन गई ना, बहुत बढ़िया सी सिमेट्री कि कहीं पे भी ले लो, ठीक। अब पॉइंट पी पे हम देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट की वजह से प्लस चार्ज की वजह से दूसरी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज पे कहाँ पे होता है, आउटवर्ड्स होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस पे एक डी ए मतलब होता है छोटा एरिया, छोटा एरिया बनाएंगे यहाँ पे। इस छोटे एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। अब आप बोलोगे कि जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो मैं बताती हूँ कि अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, आई नो, बट हम सरफेस के एरिया वेक्टर को यूजुअली जहाँ हम काम कर रहे हैं उसके दूर लेते हैं, उसके दूर, ठीक। तो उसके दूर यानी कि एरिया डी ए वेक्टर, एरिया इस तरफ है, ठीक है। डी ए वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ई वेक्टर डी ए वेक्टर, ठीक। अब हम लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन हमारा प्लस क्यू है तो हम इसको बाद में क्यू लिख देंगे। सो नाउ वी कैन राइट क्लोज्ड इंटीग्रल ई की वैल्यू, मुझे ये बताइए कि हर पॉइंट पे क्या सेम होगी, हर पी पे सेम होगी। देखिए हम हर पी पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रल करना है ई डी ए से, यानी हमें इंटीग्रल करना है इस सरफेस पे फ्लक्स का, ठीक। तो इंटीग्रेशन करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है ई को, अगर ई हर पॉइंट पे सेम है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं उसको कॉमन लेके बाहर ले लूँगी। लाइक ये एक इंटीग्रेशन की तरह है, सिंपल इंटीग्रेशन की तरह है, इस तरीके से कि अगर एक्स डी एक्स होता था तो हम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू लिखते थे। लेकिन अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स है तो हम क्या लेते थे, हम इस टू को बाहर ले लेते थे, टू एक्स डी एक्स, तो हम इसको टू एक्स स्क्वायर बाई टू ले लेते थे। ये जो टू है ये बाहर क्यों आया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के अंदर पहले था ना, लेकिन ये कांस्टेंट था। तो मैं वही कह रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का हमें इसमें इंटीग्रेशन करना है। डी ए अलग अलग है, ठीक। सबसे पहले इस डॉट प्रोडक्ट को रिजॉल्व करो। डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट है, भूलिएगा नहीं, यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर किसी का होता है, लाइक ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये वेक्टर हट जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा है ए और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ ए और बी के बीच का एंगल क्या है, जीरो है, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डी ए तो इस तरीके से हर जगह है, ठीक है। तो छोटे छोटे डी ए हैं, सेम ही है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। वो एक छोटा डी ए है, बट ई जो है वो यहाँ पे, ये जो एक्स है, जैसे ये एक्स है ये हर पॉइंट पे है, लेकिन छोटा डी ए कितना भी हो सकता है ना, छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट ये जो ई है ये बिल्कुल टू की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ये जो ई है ये कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कांस्टेंट होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से स्फेरिकल पॉइंट पे हर जगह कांस्टेंट होगी, हमें पहले से पता है, क्योंकि ये एक्चुअली में प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है ना। तो हमें यहाँ पे पता है, बाकी सब में हम देखेंगे कि हमें पता चलता रहेगा। तो हम ई को बाहर ले लेंगे, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्यू इन को क्यू ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्यू इन क्यू ही है।
अब ये डी ए का इंटीग्रल यानी डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए पूरे डी ए ऐड करोगे तो पूरे डी ऐड करोगे तो क्या इस स्फेरिकल शेप का एरिया आएगा, और एरिया ऑफ अ स्फेरिकल शेप होता है 4πr²। ठीक है, 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई जो हम है यहाँ पे लिखी है, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4πr²। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। क्या ये सेम आया? हेंस प्रूफ गॉस लॉ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम दूसरे सर्फेसिस पे गॉस लॉ, क्योंकि हमें पता है कि प्रूफ हो गया है, तो हम अलग अलग सर्फेसिस पे निकालेंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इस पे। ठीक है, ये है एक इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज, मतलब इस वायर में चार्ज ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है पूरे पे, और इस पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो थोड़े डिस्टेंस पे, यानी कि 1 यूनिट चार्ज के डिस्टेंस पे लैम्डा है। मतलब लैम्डा कहने का मतलब ये है कि लैम्डा जो है वो टोटल इस पूरे पे कितना चार्ज है, मान लो पूरे पे मिला के क्यू चार्ज है, और पूरी की लेंथ एल इनफाइनाइट मान रही हूँ मैं, तो उस इनफाइनाइट की लेंथ एल है इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो इनफाइनाइट है, और चार्ज अगर इनफाइनाइट पे है तो वो भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट, तो वो मैं बता नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसको लैम्डा बोल दिया कि चलो इनफाइनाइट पे पता नहीं कितना है, इतने पे लैम्डा पे मुझे मालूम है कि मतलब इस छोटे लेंथ पे, इस छोटे लेंथ को मान लो मैं डी एल मानती हूँ, तो डी एल पे मान लो एक चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू बाई डी एल भी लैम्डा होगा। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, पर यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते बिकॉज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हमें नहीं मालूम है, बट ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े डी एल पे थोड़ा डी क्यू कितना है वो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से ऐसे करके हम निकाल रहे हैं, यूनिटरी मेथड, तो ये हमारा लैम्डा उससे आता है। ठीक, अब हम इस पे एक गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हैं ताकि हम इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे निकाल सकें। तो इस पॉइंट पी पे अगर मुझे गॉसियन सरफेस बनाना, अब आप बोलोगे चल स्फेयर ले लेते हैं। अरे भाई स्फेयर लोगे, ऐसे करके स्फेयर लोगे तो ये पॉइंट चार्ज थोड़ी ना कि स्फेयर के हर पॉइंट पे सेम होगा, नहीं होगा ना, स्फेयर के हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो हम ऐसा, अब इसकी फील्ड लाइंस कैसी दिखती होंगी, तुमको कैसे दिखती होंगी, ये एक्चुअली में पता है कैसी दिखेंगी, अगर पॉजिटिव 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 होता है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है फील्ड लाइन। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, अगर ये है तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन ऐसे, मतलब कि इस तरीके से एक सर्कल्स में ऐसे ऊपर आ रही होगी, ऐसे नीचे जा रही होगी, ऐसे बाहर निकल रही है। कैन यू इमेजिन इट, इट इज़ लाइक इससे यहाँ भी निकल रही है चारों तरफ, इधर भी निकल रही है चारों तरफ, सामने भी आ रही है चारों तरफ, पीछे भी जा रही है चारों तरफ, इधर भी जा रही है चारों तरफ। इट इज़ इस तरीके से वो फैल रही है पूरे में इस तरीके से। तो क्या आपको एक सिमेट्री नज़र आ रही है सिलेंडर की? बिल्कुल नज़र आ रही है। यहाँ पर इस पॉइंट से हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, एक सिलेंडर को जिसका लेंथ हम मान लेंगे कि हम डी लेंथ की एक ले लेंगे, और क्योंकि ये पॉइंट पी है तो इसकी डिस्टेंस इस मान लो वायर से आर है, तो इस सिलेंडर की भी रेडियस आर होगी। ठीक है, ये हमारी गॉसियन सरफेस। अब आप बोलोगे कि इस पे ये सिमेट्रिक तो है नहीं, पता नहीं कहाँ पे ई क्या है, पता नहीं कहाँ पे ई क्या है, तो आई नो दैट कहाँ पे ई क्या है ये मालूम है, बट इस सर्कल में या फिर इस सिलेंडर में इस एक सर्कल अगर मैं ले लेती हूँ तो उस पॉइंट के चारों तरफ तो सेम होगी ना, इतना तो पता है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइन, अब हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहले हम इसका ये खोलेंगे। अब हम इस पॉइंट पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी इसकी वजह से। ठीक, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर, और ये जो छोटा एरिया वेक्टर है वो भी इधर ही होगा, तो डी ए वेक्टर। ठीक है, लेकिन हम ये जो ये लिख रहे हैं ना, ये सबकी वजह से लिख रहे हैं, मतलब सिर्फ इस पी पॉइंट पे नहीं लिख रहे हैं, हम सबकी वजह से लिखेंगे। ठीक है, तो हम सबकी वजह से लिखेंगे, मतलब कि इस पॉइंट, इस लाइन का इस सरफेस पे कितना होगा, मतलब कितना इससे निकल रहा है, कितना इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है। तो क्या आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ कि यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, वहाँ से पीछे से वैसे निकल रहा है, बट ऊपर से ऐसे करके कुछ नहीं निकल रहा। दिख रहा है, पीछे से ऐसे करके कुछ नहीं निकल रहा, सब ऐसे निकल रहा है, इस तरीके से फैल रहा है, ऊपर से नीचे से कुछ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इस सरफेस से और इस सरफेस से नहीं निकल रहा। तो हम अलग अलग बनाएंगे, पहले हम इस सरफेस का लिखेंगे, इस सरफेस का लिखेंगे, और फिर क्लोज सरफेस का लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ई डी ए
कॉस थीटा और 2 टाइम्स ये हो जाएगा इस सरफेस और इस सरफेस का, तो हम इसको लिख सकते हैं अपर एंड लोअर लिड, लिड है ना, ये सिलेंडर का लिड है, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए, वेक्टर नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि हमने वेक्टर खोल दिया है तो वेक्टर नहीं होगा, ओके। कॉस थीटा ये हो गया कर्व्ड सरफेस का, कर्व सरफेस का। तो क्या हमें पता है कि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो इसलिए है क्योंकि कॉस थीटा कितना बन रहा था, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं और ए वेक्टर इधर है, डी ए वेक्टर, तो ई जब ज़ीरो है, तो जब ई ज़ीरो है तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ई वॉज ज़ीरो फ्रॉम अपर एंड लोअर लिड दैट इज़ वाई इट वॉज ज़ीरो। अब ये बचा, ठीक है, कर्व सरफेस से, तो हम ये लिखेंगे ई। अब कर्व सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ले लो, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, ये कर्व पे यहाँ पे सामने में ले लो, पीछे ले लो, ई होगा, ठीक है। और डी ए छोटा कुछ भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं, ठीक, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा, कॉस थीटा भी हमने निकाला, ये ज़ीरो ही है, कॉस ज़ीरो इज़ 1, तो कॉस ज़ीरो डिग्री इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले कि क्यू इन कितनी है, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर कितनी चार्ज आ रही है, और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है कि इसका डी ए का एरिया, मतलब टोटल एरिया, यानी कि इस पूरे क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है, 2πRL, 2πRL वेयर L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ मैंने डी लिया है, तो E तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, सिंस E इज कांस्टेंट, ये डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बाहर आया था पहले, अब हम लिख रहे हैं 2πR डी इज इक्वल टू क्यू इन कितना होगा। अब देखो मुझे ये पता है कि डी एल लेंथ में, डी क्यू लेंथ में डी लाइक लैम्डा से निकालते हैं, लैम्डा एक्चुअली में क्या था, लैम्डा एक्चुअली में था क्यू बाई एल, यानी कि एल मतलब इससे निकालते हैं, एल लेंथ में क्यू चार्ज था, एल मान लो जितना भी है, एल लेंथ में क्यू चार्ज था, तो एक लेंथ में क्यू बाई एल चार्ज होगा, तो इस डी लेंथ में क्यू बाई एल इंटू डी चार्ज होगा, तो बस वही लिख देंगे क्यू बाई एल इंटू डी, राइट। और क्यू बाई एल हमारे को पता है कि लैम्डा है, तो वो लैम्डा ही छोड़ेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें क्यू और एल नहीं पता, इनफाइनाइट थी, राइट, तो हम इसको लैम्डा छोड़ेंगे। अब ये डी से डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πRL, ठीक है, 2πR इधर जाएगा, 2πRL बन जाएगा। ये है फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सिंपल। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा कि ये बहुत सिंपल है एक्चुअली में, गॉस लॉ से बहुत सिंपल है, वरना आपको करना क्या पड़ता, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता। कैसे इंटीग्रेशन करना पड़ता, कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे कितनी फील्ड लग रही है, फिर एंगल कितना लग रहा है, फिर एंगल को इंटीग्रेट करना पड़ता है 0 से -π/2 से लेके π/2 तक, तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ ग्रेट वे। अब अगला जो हमारे पास है वो है एक सरफेस ही, वो जो अभी हमारा था वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे हमारे पास जो ये चीज़ है इसको बोलते हैं सरफेस। लेकिन मैंने यहाँ पे जो सरफेस दिखाया है वो मैंने हालांकि दिखाया है एक छोटा सा सरफेस, ये है एक्चुअली में इनफाइनाइट, मतलब एक इनफाइनाइट शीट है। अब देखो इनफाइनाइट बोल रहे हो, होता ये नहीं कि इनफाइनाइट का मतलब यहाँ से लेके यूनिवर्स के एंड तक, इनफाइनाइट इतना बड़ा नहीं होता है, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। एक चींटी के लिए रूम का लेंथ ज़मीन से लेके ऊपर छत तक इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है, तो इंसानों के लिए अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इज़ अ वेरी रिलेटिव थिंग यहाँ पे, तो ये जो सरफेस है ये मत समझते यहाँ से शुरू हो रहा है सीधा यूनिवर्स के ख़त्म चारों तरफ एक बड़ा सा इनफाइनाइट शीट, नहीं, इनफाइनाइट इज़ नॉर्मल इनफाइनाइट, हमारे लिए इनफाइनाइट हो जाएगा सन का साइज़ ले लो, बहुत बड़ा इनफाइनाइट है, ठीक है, इस तरीके के इनफाइनाइट से हम डील करते हैं। तो ये एक्चुअली में इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट। अब मैंने बोला कि इनफाइनाइट में हम चार्ज कितना है वो नहीं बता सकते, लेकिन सिग्मा जो है, ये जो सिग्मा है ये यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं, ये नोटेशन है, आप चाहो तो इसको सिग्मा के अलावा कुछ और ले सकते हैं, आप ये सिंबल ले सकते हैं, आप अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, बट यूजुअल नोटेशन है सिग्मा, तो आप यूजुअल नोटेशन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी लाता है यूजुअल नोटेशन, वरना कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो सिग्मा एक्चुअली में है टोटल चार्ज ऑन द होल इनफाइनाइट शीट अपॉन
टोटल एरिया ऑफ द होल इनफाइनाइट शीट, जिसको हम लिख सकते हैं छोटे एरिया में कितना चार्ज है अपॉन छोटे एरिया में कितना ए है, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, तो इसमें गॉसियन सरफेस अगर इसका आप देखो, मान लो मैं ये इसको एकदम स्क्वायर नहीं बनाती ताकि आपको ये ना लगे कि इनफाइनाइट नहीं है, ये बिल्कुल इनफाइनाइट से फैल रहा है। ठीक है, तो इसका जो फील्ड होगा ना वो एक्चुअली में ऐसे इसमें से निकल रहा होगा इस तरफ से, और पीछे की तरफ से इस तरीके से निकल रहा होगा अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइटली निकल रहा है, पूरे से ऐसे इधर निकल रहा है, पूरे से उधर भी निकल रहा है। तो गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, सर्कल लेने में तो सही नहीं लग रहा है, बट हाँ स्फीयर वो सिलेंडर लेने में का मन कर रहा है। सिलेंडर पिछली बार भी वैसे ही था ना, कुछ ऐसे ही था, तो सिलेंडर ले सकते हैं, और या फिर हम ले सकते हैं एक क्यूबॉइड। ठीक है, दोनों ले सकते हैं, क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हैं। मैं आपको एक सिलेंडर लेके दिखाती हूँ। क्यूबॉइड आपके एनसीईआरटी में ट्राई करना, बहुत ईजी है। मैं आपको एक इसमें से सिलेंडर लेके दिखाती हूँ। ठीक, तो अब आप देखो कि इसमें यहाँ पर पिछले वाले में क्या था, कर्व्ड सरफेस से सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही थी, और ये जो लिड्स थी इसमें से कुछ नहीं निकल रहा था। अब यहाँ पे साफ साफ देखो, लिड्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, कर्व्ड सरफेस से कुछ नहीं निकल रहा है, इस तरीके से कुछ नहीं निकल रहा। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसकी प्रैक्टिस करिए प्लीज़, ये लिखना आना चाहिए, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो लिड्स हैं, लिड्स पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डी ए वेक्टर भी इधर ही है, बाहर होना चाहिए आपकी जितना भी चार्ज है उसके बाहर की तरफ। इधर भी देखो, अगर पॉइंट इस तरफ लोगे तो ई उस तरफ बाहर है, और डी ए वेक्टर भी बाहर है। तो कॉस थीटा यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि कॉस 0 है, वो इक्वल टू 1 होता है। और इस सरफेस पे, कर्व सरफेस पे कहीं भी ले लो, कर्व सरफेस पे डी ए तो बाहर की तरफ आ रहा है, बट ई ही 0 है। ठीक, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई यहाँ पे लिख लो, ई कर्व्ड डी ए कॉस थीटा प्लस ई लिड्स, या फिर हम इसको लिड्स के अलावा क्या लिख सकते हैं, प्लेन सरफेस लिख सकते हैं इसका, डी ए कॉस थीटा सम इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हमें दो चीज़ पता करनी है, एक तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पता करना है, और दूसरा एरिया पता करना है। तो एरिया अब यहाँ पे 2 पाई आर एल मत ले लीजिएगा, कर्व्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये हमें पता चल गया। लिड्स की एरिया एक्चुअली में 2 पाई आर स्क्वायर ही है, मतलब पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल ही हैं बस, लिड 2 पाई आर एल नहीं हो जाएगी, लिड्स पाई आर स्क्वायर ही है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। एरिया मतलब एक स्टेप हमारा रह गया, ई तो बाहर निकाल दो, ई इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा हमारे को पता है यहाँ पे से 1 आएगा, तो डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए का इंटीग्रल हो गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन कितना है, यानी कि क्यू इन इस वाले एरिया की बात कर रहा है, इस वाले पार्ट की। तो इस वाले पार्ट में कितना चार्ज है, तो अब आप देखो पूरे एरिया में, पूरे इनफाइनाइट एरिया में चार्ज कितना था, क्यू। एक एरिया में चार्ज होगा क्यू बाई ए, इस एरिया यानी ये एरिया एक्चुअली में कितना है, पाई आर स्क्वायर नहीं है, पाई आर स्क्वायर में होगा क्यू बाई ए इंटू पाई आर स्क्वायर, और क्यू बाई ए हमने सिग्मा लिखा है तो ये हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सीधा ई इक्वल टू लिख दीजिए सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर स्क्वायर। ये आर एक्चुअली मैंने बड़ा लिख दिया है, छोटे ही हैं, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी ई की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट केस है एक हॉलो सिलेंडर स्फीयर। यहाँ पे मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया है। ठीक है, ये डॉटेड का मतलब है हॉलो, अगर मैं इसको क्लोज लाइन बनाऊँ, डार्केड लाइन बनाऊँ, तो इसका मतलब ये है क्लोज। तो ये एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर में 2 केसेस आते हैं। सबसे पहला केस है इसके अंदर का, बताओ, प्लस रो। ठीक है, रो मतलब इसके सरफेस पे ही चार्ज है। ठीक है, एक स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, जो कि एक हॉलो स्फीयर है, और ये भी एक हॉलो स्फीयर है, और ये प्लस रो है। अब मैं इसके पॉइंट्स कहीं भी 2 जगह ले सकती हूँ। देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे बोला था, लाइक हमने इनके प्रीवियस केसेस में जो है वो
जो चार्ज है, जो पॉइंट P है वो इस चार्ज पे ही नहीं लिया, बिकॉज चार्ज पे मैंने क्या बोला था इनफाइनाइट होगा, बट यहाँ पे चार्ज पे थोड़ी ना ले रहा है, चार्ज तो सरफेस ऑफ द स्फीयर पे है ना, अंदर में ले रहे हैं पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ सम r फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे P पे ले रहे हैं, ठीक, एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस समझ में नहीं आ रहा आपको कि सर्कुलर ही लेंगे ताकि सिमेट्रिक हो, ठीक। तो ये बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही इजी केस है, ये सबसे इजी केस होता है। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ लग रहा है और इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ है, तो कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, बट प्रॉब्लम ये है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इन तो ज़ीरो है ना, तो आप डायरेक्ट लिखोगे सिग्मा डॉट डी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब अंदर की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाहर की वजह से अंदर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इसका मतलब इस सरफेस के अंदर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इजी पीसी। नेक्स्ट वन इज दिस वन, यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं सर्कुलर। आप कुछ और सोच के देख लेना अगर आपको आइडिया आ रहा हो तो, मेरे को तो सिलेंडर स्फीयर ही याद आ रहा है, याद नहीं एक्चुअली समझ में आ रहा है, आप कुछ और ट्राई करके देख लेना, क्यूबाइड वोबाइड आ जाए तो बता देना। तो यहाँ पे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप देखो क्यू इन क्या है, क्यू इन ये जो रो है, रो मतलब होता है एक यूनिट पे कितना इस पे सरफेस पे चार्ज आ रहा है। एक्चुअली रो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक सरफेस है ना, हॉलो स्फीयर तो सरफेस ही होता है, तो आप रो मत लिखो, आप सिग्मा ही लिखो। सिग्मा ही हमने लिखा था ना, हमने शीट प्लेन शीट में सिग्मा लिखा था, इस पर भी सिग्मा लिखो। क्यों? क्योंकि एक शीट टाइप का ये सर्कुलर शीट है, अगर वो वॉल्यूमेटिक होता ना, उसमें वॉल्यूम होती तो फिर हम उसको रो लिखते हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा है, शीट है, ठीक है। अब देखो पूरे पे चार्ज क्यू बाई पूरे का सरफेस एरिया, कुछ सरफेस एरिया होगा वो होगा सिग्मा। तो हमें जो क्यू इन लेना है, इस पॉइंट के क्यू इन पे एक्चुअली पूरा ही है, तो पूरा ही का मतलब ये हो गया क्यू इंटू पूरे का एरिया इंटू सिग्मा, और पूरे का एरिया कितना है 4πr² है, सरफेस एरिया 4πr² सिग्मा है, तो ये हमें क्यू इन पता चल गया 4πr² सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम अंदर का निकालते हैं। अंदर का देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, बाहर की तरफ है, डी ए की डायरेक्शन बनाओ, बाहर की तरफ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस 0, ये 1 हो जाएगा। अब ई कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ, ई डी ए इज इक्वल टू कितना क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी ए का इंटीग्रल यानी कि इस डी ए का इंटीग्रल, ठीक है। छोटा छोटा जो डी ले रहे हैं, डी ए ले रहे हैं, वो डी ए ये इसकी एरिया है ना, तो डी ए की इसकी आएगी। तो अब देखो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो 4πr² है ना, ये कैपिटल आर होगा, मतलब कि इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस, यहाँ पे इसकी रेडियस आएगी, और यहाँ पे जो डी ए लेंगे 4πr² वो इसकी लेंगे, तो वहाँ पे छोटा आ जाएगा, तो ये होगा ई 4π छोटा r² इज इक्वल टू 4π कैपिटल r² सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे r² अलग अलग है, तो 4π से 4π कैंसिल होगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² बाई r², ओके। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फील्ड ड्यू टू अ एक्सट्रीमली थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल भी होगा ना, मतलब हॉलो स्फीयर है, मतलब शेल है, सिर्फ उसका छिलका है, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो मैंने सिग्मा लिखा है, एक्चुअली में आप देखो तो ये जो टोटल चार्ज है, मतलब क्यू इन जो है वो टोटल चार्ज है, तो इस पर जो टोटल चार्ज है वो तो टोटल की चार्ज तो क्यू ही था ना, इस पर थोड़ी ना इनफाइनाइट चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्यू भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्यू इन की जगह आप ये जो पार्ट है ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू इन को क्यू भी लिख सकते हो ना, टोटल चार्ज इस पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। आर जो है ये छोटा आर है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा वाला आर, तो ये एक्चुअली में के क्यू बाई r² ही है। तो हम कह सकते हैं कि एक हॉलो स्फीयर की वजह से इस किसी भी पॉइंट P
आउटसाइड द स्फीयर जो वैल्यू ऑफ चार्ज होगी वो एक्चुअली एक पॉइंट चार्ज की तरह ही एक्ट करेगी। मतलब ये जो स्फीयर है ये आउटसाइड के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी। ऐसा लगेगा कि ये सारा जो एरिया है वो एक पॉइंट पे ही है। ठीक है, अब हम फाइनली लेंगे लास्ट एग्जाम्पल जो है एक सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये एक स्फीयर है जो कि सॉलिड है, भरा हुआ है। तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर हम लेते हैं, जो कि मैं देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे एनसीईआरटी में नज़र नहीं आ रही है, बट आई हैव गॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद दीज, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आएगा कि नहीं आएगा, बट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू इट। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से जैसे पहले हमारा बन गया क्वेश्चंस वैसे ही बनेगा। इनसाइड वाले के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, बाकी आउटसाइड वाले के लिए तो बहुत इजी है, सिंपल है। मैं पहले आउटसाइड का बता देती हूँ फिर इनसाइड का बनाती हूँ। पहले आउटसाइड पॉइंट पे P है, डिस्टेंस R है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, इस पर चार्ज प्लस रो मानते हैं तो मतलब वो थोड़े से एरिया में रो है। ठीक है, मतलब थोड़े से वॉल्यूम में, मतलब छोटा वॉल्यूम डी वी यानी छोटा वॉल्यूम में रो है, लेकिन टोटल चार्ज में क्यू भी बोल सकती हूँ। तो अगर मैं बाहर ले रही हूँ तो टोटल चार्ज इंटरनल आ ही जाएगा ना। अब मुझे यहाँ पे गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही लग रहा है, आपको क्या लगता है? ओके, अब इस स्फीयर से हम इस पॉइंट पे E निकालेंगे, E बाहर की तरफ है, DA भी बाहर की तरफ है, तो इसका एरिया कितना होगा? वो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कॉस ज़ीरो होगा, क्योंकि 0 डिग्री बना रहा है, कॉस ज़ीरो इज़ 1। तो इंटीग्रल E डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन एक्चुअली में टोटल क्यू ही है, या तो बोलो रो इंटू उसका 4πr² करो। 4πr को नहीं, एक्चुअली वॉल्यूम है ना, रो जो है वो वॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूमेट्रिक, तो इसका मतलब पूरी की वॉल्यूम बतानी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3πr³। 4/3πr³ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। Such an amazing thing to be confused at. Volume of sphere 4/3. Right. I'm so confused right now. Okay. So हाँ, तो यहाँ पे तो क्यू ले सकते हैं। अगर अंदर होता तो फिर हमें प्रॉब्लम होती। बाहर में तो पूरा चार्ज क्यू ही है, तो पूरा चार्ज क्यू लेंगे, नीचे में एप्सिलॉन नॉट लेंगे, ई कांस्टेंट ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल कॉस 0 1 होता है, इंटीग्रल डी ए करेंगे, और डी ए यानी एरिया ऑफ दिस ये जो डी ए है ये इसकी एरिया है, छोटे छोटे एरिया जो हम ले रहे हैं इसकी एरिया है, तो वो हो जाएगा 4π छोटा r² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4πr², तो इसको 1/4πr², 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² नहीं लिख सकते। और क्या ये सेम नहीं है बिल्कुल ऐसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितना r डिस्टेंस पे लग रहा था? तो राइट, स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे पॉइंट चार्ज हो, इनकी हर के पॉइंट P पे r डिस्टेंस पे k/r² ही लगता है। ठीक है, अब हम इंटरनल की बात कर लेते हैं। छोटी सी बात है इसमें जो कि आपको समझनी है, बाकी सारी चीज़ आपको ऑलरेडी आती है। बहुत छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। थोड़ा सा मैंने ये बना दिया। इंटरनल पॉइंट P पे मैं एक गॉसियन सरफेस लेती हूँ। मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है। ठीक है, इसमें बस आपको क्यू इन निकालना होगा, जो कि आपको पता करना है कि कैसे निकालना है। तो अब बहुत इजी है, बहुत इजीली देखो, ये जो रो हमारा आ रहा था, रो हमारा क्या बोल रहा था? टोटल, जैसे कि रो क्या था? टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज मान लो इस पर प्लस क्यू है अपॉन टोटल वॉल्यूम इसका 4/3πr³ है। r यहाँ पे इसका रेडियस है, और पॉइंट P पे जो r है वो छोटा r है। ठीक है, तो ये अब मैं बोल रही हूँ कि 4/3πr³ पे चार्ज कितना था? Q था। 1 वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा? Q इंटू 3/4πr³। ठीक, तो इस वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम कितना होगा? इस छोटे का वॉल्यूम कितना होगा? इस छोटे का वॉल्यूम होगा 4/3π छोटा r³ ना, तो 4/3π छोटा r³ इज इक्वल के अंदर कितना होगा? तो होगा Q/4/3πr³ इंटू 4/3π r छोटा r³।
ठीक, अब मैं इसको काटने की जगह सीधा इस पार्ट को रो लिख रही हूँ, वो जो रो वहाँ पे था वो रो इंटू 4/3 πr क्यू। आप बोलोगे काट क्यों नहीं दिया, अच्छा लग रहा था, अरे रहने दो ना, आगे जाके ये बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा। सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला था, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई की वैल्यू बाहर की तरफ आएगी, डी ए की वैल्यू भी बाहर की तरफ आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ई डी ए कॉस थीटा 1 इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रल करेंगे, डी ए का इंटीग्रल करेंगे, डी ए का इंटीग्रल मतलब इसका एरिया है ना, डी ए मतलब वो एरिया ही होता है, वॉल्यूम नहीं आएगी यहाँ पे, ए एरिया होता है ना, तो डी ए क्या होगा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, तो ई इक्वल ई इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन कितना निकाला हमने, रो 4/3 πr क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई वैल्यू आ जाएगी 4/3 πr क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो ये कटा ना, 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा, तो ये बचेगा, रो कहाँ चला गया, रो भी तो था, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आ जाएगी रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको रो ना याद आए, आपने यहाँ काट दिया, तो आप क्यू से भी आंसर लिख सकते हो, बट ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जो कि याद भी किया जा सकता है, तो इसलिए आप चीज़ों को शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हुआ गॉस लॉ एंड, और इसी से हमारा एंड होता है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक